لفظ ملتا ہے وہ ملتا ہے کہ روسیوں کے خط میں لکھا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے معلوم ہے۔ تو یہ جو لفظ صورت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقت باپ کی ہے، جو ماہیت باپ کی ہے، جو ذات، جو جوہر، جو سبسٹنس باپ کا ہے، وہی بیٹے کا ہے۔ جو صورت باپ کی ہے وہی بیٹے کی ہے۔ وہ ہم ذات ہے، ایک ہی ذات ہے۔ بیٹا ہوتا ہی باپ کی ذات ہے۔ یعنی حیوان سے جو چیز پیدا ہو حیوان، انسان سے جو پیدا ہو کیا ہوگا؟ انسان ہوگا، اور جو خدا سے پیدا ہو خدا ہوگا۔ روح القدس کا جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ باپ مولود نہیں ہے، نہ مسلوح ہے نہ مخلوق ہے۔ بچوں کو ہفتے والے دن جو عقائد پڑھا رہا ہو، عقیدہ پڑھا رہا ہوتا ہے، تو گزشتہ کل میں ہم نے نقایا کا عقیدہ پڑھا تھا، اور اثناسیس کے عقیدے میں جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ ہم واحد کی پرستش ثالوث میں اور ثالوث کی پرستش توحید میں کریں۔ پھر امتیاز جو باپ اور بیٹے کا ہے ذات میں نہیں ہے، ذات تینوں کی سیم ہے، سیم سبسٹنس، جوہر سیم ہے، پرسنالٹی میں ڈسٹنکشن ہے، سپریشن نہیں ہے، الگ نہیں ہے۔ وہ جس طرح میں اور آپ الگ ہیں، باپ بیٹا پاک ذات میں تمیز رکھتے ہیں۔ کیسی تمیز؟ جیسی میں اپنی ذات میں روح، بدن اور جان کی۔ میری روح میرے بدن سے الگ تو نہیں، میرا بدن میری روح سے الگ نہیں، لیکن روح بدن نہیں ہے، بدن روح نہیں، یہ امتیاز ہے۔ لیکن اس میں سپریشن نہیں ہے، ڈسٹنکشن ہے، تمیز ہے، الگ نہیں ہے۔ الگ ہو جائے تو تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو اثناسیس کے عقیدے میں لکھا ہے کہ ذات کو تقسیم نہ کرے، اقانیم کو مخلوط نہ کرے، کہ یہ نہ کہیں کہ وہ آپ ہی باپ ہے، آپ ہی بیٹا تھے، آپ ہی۔ ہاں ذات میں وہ تینوں سیم ہے، لیکن باپ کی شخصیت، باپ تخلیق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے۔ باپ سرچشمہ الوہیت ہے، جس میں سے بیٹا مولود ہے اور روح القدس ذات ہے۔ آمین۔ اسی نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیج دے۔ تو روح القدس ہمارے لیے اس منصوبہ نجات میں دوسرا مددگار ہے۔ پہلا مددگار کون ہے؟ اور مددگار کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے بائبل مقدس میں وہ پیراکلیٹوس۔ پیراکلیٹوس کا مطلب کمفرٹر بھی ہے، ہیلپر بھی ہے، اور اس کا ایک مطلب ایڈوکیٹ بھی ہے، وکیل بھی ہے۔ اس کا مطلب مددگار بھی اس کا ایک مطلب ہے، اور تسلی دینے والا۔ روح القدس وکیل ہے، روح القدس تسلی دینے والا ہے، روح القدس مددگار۔ ہاللیلویا۔ جس طرح نجات کے کام کو پورا کرنے کے بیٹے نے اپنی بشریت کو صلیب کے مذبح پر قربان کر کے کفارہ پیش کیا، روح القدس اس منصوبہ نجات میں، اس زمینی زندگی میں ہماری مدد کرتا ہے۔ کہ ہم کہتے ہیں نا ہم انسان ہیں، ہے نا یہ اقرار ہمارا پھر اسی پھر بھی وہ ہے یسوع نے خدا سے تیسی انسان، لیکن نہیں، یسوع اسی خدا ہوتے ہوئے انسان تھے۔ دیکھیں وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمائے۔ تو میرے عزیزوں، واقعی ہم بدن کے وطن میں رہتے ہیں، اور بدن کے وطن میں رہتے ہوئے ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ ابلیس پر غالب آنے کے لیے، خواہشات پر غالب آنے کے لیے، خیالات پر غالب آنے کے لیے، خدا کے ٹھہرائے ہوئے اس معیار پر پورا اترنے کے لیے، آسمان کی بادشاہی کی تیاری کے لیے روح القدس ہمارا مددگار ہے۔ آمین۔ روح القدس ہمارا کیا ہے؟ مددگار ہے، ہمارا ایڈوکیٹ ہے، ہمارا کمفرٹر ہے، تسلی دینے والا۔ مدد اسی وقت درکار ہوتی ہے جہاں آگے کمزوری ہو۔ خدا انسانی خصلت سے، انسانی جبلت سے واقف ہے کہ بشر تو خدا نے اپنی ذات کا تیسرا اقنوم پہلے بیٹے کو بھیجا، دوسرا اقنوم، تیسرا اقنوم روح القدس ہے۔
आकर हमारी मदद करता है। और हवाला इसके लिए जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना अमाल की किताब में से 2 बाब और उसकी पहली आयत में आपको पढ़ूंगा। लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकयक आसमान से उन्हें आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत। बड़े सुने जाने। सो ये वो वाकया है जिसकी बुनियाद पर हम आज के दिन इकट्ठे हुए। कल संडे भी है, लेकिन आज नोयत जो है वो फर्क है। तो आज का दिन वो खूबसूरत दिन है जिस दिन रूह कुद्स नाज़िल हुआ। 16 मुल्कों से यहूदी यरूशलेम में मरकजी इबादत खाने में इकट्ठे होकर इबादत करते थे, शुक्रगुजारी करते थे। और आज हम सब भी इकट्ठे हुए हैं ताकि हम शुक्रगुजारी करें। तो मेरे अजीजों, रूहुल कुद्स हमें कुव्वत देता है, ताकत देता है। रूहुल कुद्स हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करता है, हमारे किरदार की तामीर करता है। रूहुल कुद्स के कितने फल बताए गए हैं? 9 फल बताए। रूह का फल मोहब्बत है। इन फलों की बुनियाद क्या है? मोहब्बत। रूह का फल मोहब्बत। नंबर 2 खुशी। रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी। हालेलुया। और लिखा है कि इन बातों कोई कायनात की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। हालेलुया। सो रूहुल कुद्स हमारे किरदार को डेवलप करता है। सबसे पहले जो चीज हमारे अंदर पैदा करता है रूहुल कुद्स, वो क्या है? बताइए, क्या चीज है? मोहब्बत। खुदा से मोहब्बत। पूरी शरीयत का निचोड़ क्या? खुदा से मोहब्बत और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखना, ये प्रायोरिटी है। सारे अहकाम की का जो निचोड़ है वो ये है, आप खुदा से मोहब्बत रखें और उसके इजहार के लिए अपने पड़ोसी से अपनी मानद। हालेलुया। रूहुल कुद्स का फल मोहब्बत है, और मोहब्बत का जो जज्बा है वो कायनात में बिखरा हुआ है। परिंदों में भी आपको नजर आता है, जानवरों में भी आपको नजर आता है, लेकिन इसका उत्तम इजहार, सबसे बड़ा इजहार कलवरी पर। हालेलुया। खुदा ने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। हालेलुया। कलवरी का पहाड़, सीना का पहाड़ खुदा की मर्जी का इजहार है, जहां उसने अहकाम दिए थे कि मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या पसंद नहीं। लेकिन कलवरी का पहाड़ वो है जहां खुदा की मोहब्बत ने और इलाही अदल ने बोसा लिया। कलवरी का ही वो पहाड़ है जहां खुदा की मोहब्बत का खुलकर इजहार होता है, और खुदा के इंसाफ का, उसका इंसाफ ये था कि अब्राहम का बेटा कुर्बान ना हो बल्कि मेरा बेटा कुर्बान। रोक दिया था अब्राहम, अपने हाथ को रोक, मत चला छुरी अपने बेटे की गर्दन पर। फिर बाबा अब्राहम ने पेशगोई की। इसहाक ने पूछा कि ऐ बाप, छुरी भी है, आग भी है, लकड़ियां भी है, बर्रा कहां है? आग भी है, लकड़ियां भी है, छुरी भी है, लेकिन ऐ बाप, बर्रा कहां है? बाबा उस बच्चे को तो अभी नहीं पता था ना कि क्या किस्सा क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा। तो भी इसहाक की खूबसूरत बात मुझे ये नजर आती है कि वो अपने बाप का फर्माबरदार, उसे बांधा तो ऐसे तो नहीं बांध दिया, उसकी मर्जी का लिटा दिया उसे।
उसे लिटा दिया लकड़ियों पर, और छुरी लेकर जैसे ही उसने गर्दन पर उसे ज़िबा करने के लिए गर्दन पर छुरी चलाना चाही, ऊपर से आवाज आई, अब्राहम अब्राहम अपना हाथ। समझ रहे हो? तेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा बेटा। बाबा अब्राहम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा और कहा कि इस पहाड़ पर बर्रा मुहैया किया जाएगा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आवाज ये पुकार रही थी कि देखो ये खुदा का बर्रा इब्राहिम का बर्रा उठाकर ले जाता है। तो खुदा की मोहब्बत का इजहार, सबसे बड़ा इजहार खुदा की मोहब्बत का इजहार। वालिदैन में मोहब्बत के जज्बे को रखा गया है कि अपनी औलाद के लिए वो खुद खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी तरक्की कामयाबी के लिए हमेशा ही कोशिश करते हैं। माँ बाप भी वो कायनात में दो ऐसे अनासिर हैं जो अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचते। पड़ोसी सोच सकते हैं, रिश्तेदार सोच सकते हैं, और लोग सोच सकते हैं, इब्लीस तो वैसे ही हर एक इंसान के खिलाफ। लेकिन खुदा ने मोहब्बत के जज्बों को, उसके इजहार को माँ बाप में कि बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत करें। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है इसमें मोहब्बत को बुनियाद ठहराया गया है। लिखा ना, रूह का फल मोहब्बत। और कायनात में पहला रिश्ता जो है वो हमें नजर आता है कि आदम की पसलियों में से एक पसली निकाली गई, दिल के पास से निकाली गई, सर से नहीं ली गई, ना पांव से हड्डी ली गई है, बल्कि पसली जो दिल के पास है, ताकि मर्द और औरत के दरमियान मोहब्बत का जज्बा कायम हो, मोहब्बत का रिश्ता कायम हो। और जितना ज्यादा ये मोहब्बत का रिश्ता है उतना ज्यादा ही यहाँ नफरत नजर आती है, लड़ाई नजर आती है, पाप नजर आता है। सबसे बड़ा दुश्मन हमें इब्लीस को ऐसे अपने बदनाम पर है तो सही दुश्मन, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त शौहर अपनी बीवी का और बीवी अपने शौहर की नजर आती है। एक बटेला मैं एक की छत तले रहते, एक की छत तले रहते हैं, लेकिन पूरा उन्होंने जड़ा ना इराक ते ईरान बनाया। लेकिन नहीं, मोहब्बत, खुशी हमारे अंदर होनी चाहिए। खुशी हमारे हर बार वो सही रहे, परेशान ही रहे, गम नहीं रहे। नहीं, खुशी होनी चाहिए हमारी। वजह क्या है? वजह यह है कि हम छुड़ाए गए। हालेलुया, हम आजाद किए गए। जब छुड़ाए गए, आजाद किए गए, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए। और खुशी वो जो रूहुल कुद्स की बुनियाद पर हमारी खुशियां होती हैं। तनख्वाह मिले जितना से बड़े हो, जिधर मौके जाए उधर से फिर परेशान हो गए। हमारी खुशियों की बुनियाद अच्छा खाना, रुपया पैसा, शादी ब्याह और बहुत सारी चीजें। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखें कि रूहुल कुद्स हमारी खुशी की बुनियाद हो कि हम छुड़ाए गए, बचाए गए। आमीन। रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान है। पर बंदा हर वक्त भी बेचैन है, बंदा खुदा दा बेचैन ही रहता, नींद नहीं आती, रात जागता नहीं, नींदर ही नहीं पड़ी, अंदर इत्मीनान ही नहीं है। वजह क्या? खाली है, इत्मीनान नहीं। मैं ये समझता हूं कि कायनात में इत्मीनान की सबसे बड़ी बुनियाद यीशु मसीह की जात है। जब यीशु जिंदगी में आ जाता है तो फिर आप हर तरह की बेचैनी से आजाद हो जाते हैं। लिखा, बेचैन ना हो, इससे बुराई ही निकलती है। बेचैन जिंदगी में से बुराई ही, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। आपको मुतमय्यन होना चाहिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ मान रहे हैं, वो ठीक है, दुरुस्त। इत्मीनान कैसे पैदा होता है? बाइबल क्या कहती है? अच्छी बातों पर गौर करो, जो बातें शराफत की उन पर गौर करो, तरक्की की बातों पर गौर। तो जब गौर और चीजों पर होता है तो फिर अंदर बेचैनी होती है। हाँ, इसके बाद आने में ताखीर दिल को बीमार कर देती है। लेकिन मेरे अजीजों, दुआया मज़बा वो ऐसा मकाम है जहां हम इत्मीनान पाते हैं। खुदा की हुज़ूरी में हमें तसल्ली मिलती है, क्योंकि खुदा तसल्ली का सरचश्मा है। आमीन।
किसी ने कहा मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिया जाता हूं। इत्मीनान रखें, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल। साडा कई दफा हर बारी छेती कर लो, छेती कर लो, छेती कर लो, छेती छेती। तहम्मुल होना चाहिए, गुफ्तगू में तहम्मुल होना चाहिए, उठने बैठने में तहम्मुल होना चाहिए, आमीन, तहम्मुल होना चाहिए, मेहरबानी होनी चाहिए, नेकी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ईमानदारी हमारे अंदर होनी चाहिए। हिल्म का मतलब होता है कि हर तरह की ज्यादती जो दूसरे की तरफ से की जाए उसे बर्दाश्त करो। ये नहीं कि किसी ने गल की कद वो चंड मारी हो और तू मैनू वेखना क्यों है, तू मैनू वेखना क्यों है, तू ये गल की क्यों है मेरे नाल। वो जी बंदा डंडा लैके किसी सिर पाड़िया, लेकिन तहम्मुल ये सिखाता है कि हम दरगुजर करें, आमीन, माफ करो, रहम करो, कहना रहम करो तुम पर। बुद्धिस्ट जो लोग हैं, हम क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट लोग जो है जब टक्कर हो जाती है ना, कभी चलते चलते टकरा जाता है बंदा, तो जिसे टक्कर लगती है वो सॉरी करता है कि सॉरी। तो जो साढ़े इतने टक्कर लग जाए नजर नहीं अन्ना हो गया। जो भी हम बस मौका मिलना चाहिए था, बस एक बारी मौका मिल जाए पूरा पूरा एक्सरे पूरा कर लिया तो जाएंगे कितने। तो ये रवैया जो है ये रूहुल कुद्स का, ये किरदार नहीं है, करैक्टर नहीं है। करैक्टर आपका हिल्म होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना। वो ये नहीं कि तू चल, कायदे आज़म ने फरमाया तू चल, ते मैं आया, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं कर दूंगा, मैं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर कर सकते थे नहीं कर सकते। हिल्म होना चाहिए, परहेजगारी होनी चाहिए, हर वो काम। ज्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा इस पर, शायर वाली की मीटिंग। लेकिन खास बात जो मैं आज, इल्मी बातें भी मैंने आपको बताई, थियोलॉजी की बातें भी बताई मैंने आपको, और मैं रूहानी पहलू जो है उसके हवाले से आपको बता रहा हूं कि ये रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी में ये डेवलप करता है, करैक्टर को डेवलप करता है, और हम बाकिरदार, रास्तबाज, बाकिरदार लोग बनते हैं। हमारे मुंह से अच्छी बातें निकलती हैं। देखा ना, जिस काम को जाहिर है, नाच, गालिब गलोच, झूठ, मगन, फरेब, ये सारी चीजें जिस्म के काम है, और ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो रूहुल कुद्स आता है हमारी जिंदगी में और ये काम करता है। इसके अलावा और भी नेमतें हैं, रूह की 9 नेमतें भी, और 5 खिदमात में से भी खिदमतें जो है वो हमारी जिंदगी में एक्टिव होती है, हमें विक्टोरियस, फतहमंद मसीही बनाने में रूहुल कुद्स का एक बहुत बड़ा किरदार। हालेलुया। मसीही तो है हम, लेकिन फतहमंद मसीही, बेदार मसीही, बेदार मसीही वो होता है जो हर वक्त बेदार है। रूह से लिखा है, रूह से भरे रहो, शराब में मतवाले ना बनो, बल्कि रूह से मामूर होते चले जाओ। रूह से मामूर होने का मतलब है कि अपने आप को खुदा के ताबे करते चले जाओ। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को खुदा के ताबे करेंगे, उतना ही ज्यादा आप रूह से मामूर होने का मतलब यह है कि आपका देखना, सुनना, सोचना, बोलना रूह के मुताबिक बनेगा। तो गोया कि आप रूह के ताबे होकर उसकी मामूरी में बढ़ रहे हैं। रूह की मामूरी कहीं बढ़ रही है, लेकिन रूहुल कुद्स जब आपकी जिंदगी में आता है, अभी रूहुल कुद्स हमें मिलता है। लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप तुम्हें रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। अच्छा, ये रूहुल कुद्स है किन किन के लिए? खुदा है ना, खुदा, लेकिन है किन के लिए? किन के लिए बताएं मुझे? हर फर्द बशर के लिए। लिखा है कि मैं अपना रूह हर बशर पर नाज़िल करूं। यह खुदा की तरफ से लिखा है कि यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। ये वादा तुमसे है, तुम्हारी औलाद से है, और उन सब दूर के लोगों से है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास है। हालेलुया। हमने दुनिया की बहुत सी चीजें मांगी, बहुत कुछ मांगते हैं, मांगने चाहिए,
लास्ट जो मैसेज था वो यही था, मांगते रहो, मांगना चाहिए। दूसरे मकाम पर लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप तुम्हें अच्छी चीजें, एक मकाम पर लिखा है रूहुल कुद्स ना देगा, एक जगह लिखा है कि अच्छी चीजें वो देगा, लेकिन रूहुल कुद्स के वसीले लिखे ना, पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे अजीजों, हमारा फोकस, हमारी जो भूख, हमारी प्यास जो होनी चाहिए रूहुल कुद्स होनी चाहिए। क्या खुदावंद मुझे अपना पाक रूहुल कुद्स दे, और जब रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में आएगा तो अच्छी चीजें भी आपको, दुनियावी इनामात भी आपको मिलेंगे, रूहानी इनामात भी आपको मिलेंगे। लिखे ना, रूह की नेमतें 9 नेमतें हैं, ईमान, मोजज़ात है, गैर जुबान है, गैर जुबानों का तर्जमा है, इल्मियत है, हिकमत का कलाम है, बेशुमार नेमतें जो है वो रूहुल कुद्स आकर हमारे किरदार को डेवलप कुछ करता है, वो हमें तामीर करता है। रूहुल कुद्स हमें तामीर करता है, और तामीर वही शय होती है जो किसी के हाथ में नहीं होती। अगर कोई खूबसूरत मिट्टी का बर्तन है तो वो मिट्टी का जो लौंडा है, मिट्टी का जो पेड़ा है, जो कुछ भी, वो उसको क्या किया जाता है, पहले कुम्हार के हाथ में, वो अपने हाथ में लेता है, फिर उसको वो रखता है, ठीक है ना, फिर उसको तरतीब देता है। इसी तरह जब हम अपने आप को खुदा के ताबे कर, खुदा के हवाले करते हैं, तो फिर खुदा हमारी जिंदगी में, उनके फल भी जाहिर होते हैं हमारी जिंदगियों में से, और उनकी नेमतें भी हमारी जिंदगी में से। फिर ना सिर्फ हम बरकत पाते हैं, बल्कि जो भी आपके मुतालिका आपके साथ मुंसलिक है, वो तमाम लोग जो है, हमें इस रूहुल कुद्स का हमारी जिंदगी में आना बहुत जरूरी है। और अगर हम में से किसी के पास रूहुल कुद्स नहीं, तो उसके लिए खुशखबरी ये है कि रूहुल कुद्स इनाम है, इसके पैसे नहीं देने पड़ते, इसके लिए कोई आपको फीस नहीं देनी पड़ती, ये फ्री, हमें सब आए दुआ करें। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र। वज़ीर